Okay, one more hour to go. All of you will. Shall we play a game? Yeah, हम लोग yeah, खेल yeah. खेले क्या देखो तैयार हो गए 1 घंटा और इंतजार करें ना Okay, so what should we play? Okay, can we all stand? हम लोग खड़े हो जाएं खेलने के नाम से सब खड़े हो गए बातें ना करो Okay, you should know two actions, okay? Very simple. Dosa. No, one. Dosa, डोसा coffee. Dosa, coffee. Okay. डोसा कॉफी है So let him sit, let him sit. Sit. Okay, so what you should do is you should do what I say, मैं But- जो आप कहती हूँ उसको आपको करना है but not do what I do. लेकिन जो मैं कर रही हूँ उसको नहीं करना है Understood? समझ में आ गया You should know. You cannot close your eyes, you should look at me. हाँ आपको आंख बंद नहीं करना मुझे देखना है Okay? You मैं क्या बोल understood? रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ You should do what I do. मैं जो कुछ Do what I say, जो कुछ मैं कहती हूँ उसको आपको करना है but not do what I do. लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसको नहीं करना है Okay? If you make a mistake, be honest and sit down. हाँ अगर आप गलती करेंगे ईमानदारी से बैठ जाना Bible college. Ready? Dosa. Coffee. Dosa. Coffee. Dosa. Coffee. Dosa. 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 Sit. No, it's not a class. Sit. Okay. इसने कॉफी पिया बैठा Dosa. I said dosa and all. Okay, ready. Dosa. Coffee. Dosa. Coffee. Dosa. Coffee. Dosa. Coffee. Last round. Ready? Everyone has to look at me. हाँ सब जगह से देखे मुझे देखे All those are standing. जो लोग खड़े हैं ओके धन्यवाद Ready? Coffee. Dosa. Coffee. Okay, very good. Sit down. बैठ जाइए Okay, this is an interesting topic on communication. और ये बहुत ही क्या बोलना चाहिए बहुत ही इंटरेस्ट है आ गई है इस विषय को पढ़ने पर So, in marriage, one of the most important ways to build a good relationship is through communication. और वैवाहिक जीवन में अगर उस वैवाहिक बातों को मजबूत करना है सबसे अच्छा जो कार्य है बातचीत संवाद करना So, communication in marriage has to go to deeper levels of conversations. और हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर अगर आप गहरा संबंध बनाना है बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है So, in marriage, what is the goal of और communication? वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा खास संवाद क्या है बातचीत क्या है बातचीत की शैली क्या है What is the purpose of communication और in marriage? वैवाहिक जीवन में संवाद या बातचीत करने का उद्देश्य क्या है Oh, yeah, I know. What does it do? उसके लिए क्या करना How do you होगा do it? How do you do it? कैसे करेंगे उसको To make it, to build a relationship, how does communication help? रिश्ता बनाने के लिए मजबूत रिश्ता बनाने के लिए कैसे हमें संवाद करना होगा या बातचीत करना होगा Yes, understanding each other. Okay. एक दूसरे को समझना होगा
Share, yes, to share your एक दूसरे personal को thoughts, एक दूसरे को आदान प्रदान करना होगा, to be honest, yeah. Yes, to know feelings, उनके yes. एक दूसरे के महसूस करना है कि क्या है उनके अंदर, Okay, so there are different levels of communication. और संवाद या बातचीत करने के अलग अलग तरीके हैं। There is a casual communication यहाँ पर एक अनौपचारिक संवाद है। that those kind of communication is how you communicate to your milkman or the postman. और आप देखते हैं कि एक दूध बेचने वाला या पोस्टमैन के साथ किस प्रकार आप बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। Do you share feelings with your postman? क्या आप अपने पोस्टमैन के साथ आपके फीलिंग्स को बांटते हैं? Say hi, how are you? How was your day? Give me 1 liter milk. हाँ, बस उससे पूछते हैं कैसे हो, हेलो हाय करके 1 लीटर दूध दे दो भाई। Right? Can marriage survive in such a communication? क्या इस प्रकार इस रीति से क्या हम जी सकते हैं बातों को करके? Sure. Okay. No, it cannot, right? ये नहीं हो सकता। The second kind of level is a professional communication. दूसरा जो बात करने का स्तर है बातचीत का, वो है व्यवसायिक। That is what you will do in maybe your workplace or people who you are working with, where you're sharing maybe ideas about a certain project you are doing. और जहां पर आप काम करते हैं, जो जिन लोगों के साथ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, आपकी आपकी कल्पनाओं को वहां पर उनके साथ जो योजना बनाते, विशेष बातों को आदान प्रदान करते हैं। You're only sharing ideas, you're only sharing facts, only sharing information. और वहां पर क्या करते हैं, आप जानकारियों को और जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। The next level is friendship. तीसरा जो स्तर है जो हम वार्तालाप करने का, वो है मित्रता। It's where you're sharing your thoughts, your emotions, your जहां पर secrets. जहां पर आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बांटते हैं। And here you are also, that there is a lot of freedom to share these things with a friend. और हमारे दोस्तों के साथ बहुत सी ऐसी बात है, स्वतंत्र होकर हम उनसे कहते हैं, वार्तालाप करते हैं। And the last level is the intimate level of communication. और जो चौथा और जो आखिरी जो बहुत संवाद करने का स्थान है, वो घनिष्ठता। This kind of a communication is where you're building trust and you are willing to be vulnerable with whatever you're going through. और जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है, आप किसी पर उस बढ़ते हुए आपके जीवन के द्वारा भरोसा करते, समर्पण करते और मित्रता का साथ बनाते, और ये सब कुछ अब वहां पर आप बोल सकते हैं, ऐसा स्थान। So sad truth is, in lot of marriages, the level of communication is at the professional level. और हम देखते हैं कि विवाह में, जो वैवाहिक जीवन के अंदर अनौपचारिकता बातें नहीं होती है, लेकिन हमें वहां पर घनिष्ठता की बातों को हम देखते हैं। What shall we cook today? आज क्या खाना बनाया? What color shall we paint the house? और कौन से रंग से हमें घर की पुताई करना है? What car should we buy? हम कौन सा कार हमें लेना है? So lot of marriages finish their communication there. और कई वैवाहिक जीवन इसी बातों को करते हुए खत्म हो चुका है। And so what happens? There's a lot of boredom and distance in the marriage. और हम देखते हैं ऐसा जीवन, वैवाहिक जीवन में हम देखते हैं टूटापन को देखते हैं, दूरियों को हम देखने पाते हैं। And to communicate more than that in an intimate level becomes very hard. और देखते हैं कि ऐसा जब स्थिति आ जाती है, बड़ा मुश्किल होता है वो घनिष्ठता का रिश्ता बनाने के लिए। So we should learn some good principles.
हमेशा या लगातार समझना होगा। And this has to ये किसी से वार्तालाप करने के लिए। So communication is not just about the regular things in marriage, which is, the food or the children or the school. It's not just that. और ये एक वैवाहिक जीवन में इस प्रकार का औपचारिकता या नहीं है कि विवाह में जैसे कि खाना बनाया, क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये वहां तक सीमित नहीं है। It should move into that deeper level of communicating your thoughts and your ideas and your feelings. हमें गहराई के साथ, गहराई में जाने के लिए हमारे विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटना, आदान प्रदान करना जरूरी है। Okay? Another element of good communication is trust. और दूसरा जो खास बात है, भरोसा करना। So trust goes two ways. भरोसा दो तरीके से चलता है। It should be given और देना एक देना, and it should be earned. दूसरा उसे प्राप्त करना। How do we do that? कैसे हम करेंगे? Now suppose I tell you a secret. और A secret. हाँ, सब उदाहरण के लिए मैं आपको एक गुप्त बातों को मैं बताती हूँ। And I am telling you a secret because I trust you. मैं गुप्त बातों को है ना, जो किसी को, दूसरे को, व्यक्ति को ना बताते हो, आपसे गुप्त बातों कहती है क्योंकि आप पर मैं भरोसा की हूँ। So I'm giving trust. मैं आप पर भरोसा की। How do I know that I can tell you a truth the next time? और कैसे फिर मैं अगले बार उस सत्य बातों को बताऊंगी? That you don't go tell this secret to somebody else. मैं आप पर भरोसा तब करूँ Okay. So we need to give trust as well as be willing to earn that trust. और हमें क्या करना है? हम जब दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हमें कहना है उस व्यक्ति पर भी भरोसा करना बहुत जरूरी है। Okay. So while this conversations in marriage should be things that you keep within the circle. और वैवाहिक जीवन के अंदर क्या करना है? जब एक दूसरे को कहते हैं, आदान प्रदान करते हैं बातचीत को, तो वो कह रहे आपस में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। Very often I have seen in counseling और मैंने जब लोगों को मैं सलाह देती हूँ, इस बात को मैंने जाना है that whatever decisions the husband and the wife makes, one of the partners goes and tells a parent. क्या होता है कि पति पत्नी के जो निर्णय लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो पति ने जो निर्णय लिया, वो पत्नी क्या करती है, अपने माता पिता को जाकर वो शेयर करती है। And that breaks trust. That breaks trust. और वो क्या होता है, भरोसा टूट जाता है वहां पर। So we've got to be very careful about what we are sharing to others, especially when it comes to marriage. इस बात में सावधानी को रखना है कि हम किसी पर अगर भरोसा किया है, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो वो बातचीत दूसरे तक नहीं पहुंचना, वो हमारे तक सीमित रहना है। So when we are able to build trust, we will be more transparent in discussing matters. और जब हम किसी पर भरोसा करके या दृढ़ हो जाते हैं, पक्का भरोसा करते हैं, तो क्या होता है कि हम दूसरी बातों करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, और भी बातों कहने के लिए
हम उस पर भरोसामंद करते हैं। Okay. So we're going to learn about why is communication important for marriage. और हम देखेंगे हमारे वार्तालाप के द्वारा मजबूत वैवाहिक जीवन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण पत्थर कौन सा या नींव क्या है। It helps to know each other and understand each other. तो क्या करना है वैवाहिक जीवन में उस निर्माण करने के लिए एक दूसरे को जाने और समझे। It helps to work together as a team. और एक टीम के रूप में काम करें। It supports each other. एक दूसरे को सहारा दे। It helps to resolve some conflicts. और समस्याओं को सुलझाएं। It helps to grow together spiritually. और क्या करें आत्मिक रीति से एक साथ बढ़े। Communication can protect your marriage. और आप जो संवाद या बातचीत करते हैं आपस में विवाह की रक्षा करता है। It helps to bring up children. और बच्चों की परवरिश करता है। And it helps to create memories. और यादों को संयोज बनाए रखता है। Okay. So how do we communicate? हमें कैसे संवाद या बातचीत करना है। There are two very important things in communication. और सलाह में या जब संपर्क करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं हमें बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातों को याद रखना है। There should be listening. पहला सुनना ध्यान से। And speaking. और बातचीत करना। So should you listen more or speak more when you're communicating? जब आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं तो आप ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा सुनते हैं। Okay. Abhi says listen. हम कहते हैं सुनते हैं। Okay. Why did God give you 2 ears? क्यों परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए? To listen more and 1 mouth. हाँ, 1 मुंह 2 कान, ज्यादा सुनने के लिए, कम बोलने के लिए। So when you're talking to someone, जब किसी से आप बातचीत करते हैं, listen more, ज्यादा सुने, talk less. कम बातें करें। Okay. So how do you listen? कैसे आप सुनते हैं? Be patient in listening. What does that mean? सहते हुए सुनना। Okay, no interruptions. वहां पर किसी प्रकार के वाद विवाद नहीं। Okay, then patience, she said. पैशन बोल दिया, सहनशील बोल What दिया। else? और क्या? Be attentive. How can you be attentive? कैसे हम पूरा उस पर ध्यान करेंगे? So not being distracted. Huh? Very good. उसमें Okay. किसी प्रकार की बाधा नहीं होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। So you're saying this, you're saying, yeah, I'm listening, tell me. I'm listening. Okay, I'm listening. Is that attention? क्या? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बीच बीच में बोल रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो क्या ध्यान लगा रहेंगे? हाँ मैं भी सुन रहा हूँ, ऐसा। हाँ यस, ऐसा बोले क्या होगा? So what else does listening mean? ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? Okay, yeah, so you're trying to understand, how do you do that? By asking questions? Okay. क्या हम ध्यानपूर्वक कैसे सुनेंगे? क्या प्रश्नों को पूछने के द्वारा? How do I know some of you are listening to me? Your response, your eyes. कई You have बार eye contact? हम अपने आंखों के द्वारा, है ना? You have contact with me? आप मुझे देख रहे हैं, देखने के द्वारा। Sometimes I know, even when you're contact, you're somewhere else, 10, 15 kilometers away. कई बार देख लो, आंख तो इधर देख तो रहे, लेकिन आपका ध्यान कोई 150 किलोमीटर दूर पे। Right? So being attentive is also something that you need to do actively. जब ध्यान से हम सुनते हैं ताकि क्या हो सके, हम स्पष्ट रीति को समझ सके और प्रतिक्रिया कर हम दे सके। Another way of listening well is to pay attention to be sensitive to what I'm saying. और कई बार हमें ध्यानपूर्वक सुनने का मतलब यह है कि हमें समझना बहुत जरूरी है, उसकी प्रतिक्रिया कैसा हो करना है हमें। So I'm saying, maybe I say, yesterday I fell down and hurt my back. और मैं कहती हूँ कि मैं कल के दिन में गिर गई थी, मुझे पीठ में चोट लगी। And you begin to laugh. और आप हंसना शुरू कर दी। ऐसा now she's laughing. Like she's laughing now. So do I think that you have listened?
तो क्या इसका मतलब आपने मेरी बातों को सुना है क्या? मैं No, गिर right? गई और आप हंसने लगे, Because you're not sensitive to what I'm saying. क्योंकि आप मैंने जो कहा आपने उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुना। Okay. So very often when we listen, we are trying to craft a answer in our head to tell them. और हमें किसी बात को सुनते हैं और हमारे मन में उस बात को तैयार करते बनाते हैं ताकि उसका प्रत्युत्तर हम कर सके। That is not listening. ये उत्तर नहीं हुआ या ध्यान नहीं हुआ। Okay. Another way of listening is when you show me that you're listening, maybe by you nod your head, you'll say, aha, oh, is it? तो कई बार क्या होता है, किस प्रकार हम सुनते हैं, हमारे सिर हिलाने के द्वारा हाँ हाँ हो कर दे। No, that's how you know someone is listening. हाँ, तब आपको समझ में आता है कि कोई सुन रहा है हमारी बात को, है ना। Some I can see there's no expression on your face, so I know you are not listening. और कई लोग का चेहरे पे बिल्कुल एकदम एकदम प्रतिमा जैसे बैठ गए, जैसे लग ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बातों को। Correct, no? सही है कि नहीं? See, some people are putting their heads down, they're not here. हाँ, कई लोग तो सिर नीचे करके बैठ जाते, वो कभी भी ध्यान ही नहीं देते, नीचे Right? मुंडी करके बैठ जाते। So, in marriage, don't do this. वैवाहिक जीवन में ऐसा नहीं करना, मुंडी डाल के बैठना। Right? So, this is one very important thing to be able to listen well. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जब वार्तालाप करते हैं, साथ संवाद करते हैं, बहुत जरूरी है। The second one is to express or to speak. और दूसरा जो है, हमें प्रतिक्रिया देना, बोलना। Okay, so let's look at how can we speak well? और हम देखेंगे कैसे हम अच्छी रीति से बोल सकते हैं। Our speaking should encourage and build the person who we are talking to. और जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं, हमें इसको सुनना है, उसे हमें प्रोत्साहित करना है। It should be pleasant to hear. और हमें सुनने के लिए तत्पर होना है। Not using bad language or any kind of insults. और कभी हमें उसको नीचा गिराने वाली बातें, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, व्यवहार नहीं करना है। Okay, so communication is like a lifeline. और जब हम किसी के साथ संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, वो हमारा क्या बोलना चाहिए, जीवन का लाइन होता है। Right? Because it's what builds the relationship और together. हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हमारे रिश्ते को कायम करते हैं, ये रिश्ते को बढ़ाते हैं। Okay, so let's look at what actually breaks good communication. और कौन से ऐसी बातें हैं कि अच्छे व्यवहार को तोड़ देती है या वार्तालाप के द्वारा। So what do you think breaks good communication? तो आप बताइए कौन सा Breaks communication. आप जो अच्छा एक वार्तालाप का ब्रिक्स, Break. कौन सा ऐसा बात है बातचीत करने के द्वारा रिश्ता टूटता है? When you lose trust. जब आप Okay. बात करने के द्वारा रिश्ता टूटता है, किसके द्वारा? Sorry? Anger. You said anger? Okay. Say that loudly. Okay, when you shout. चिल्ला देना, गुस्से में बात करना। Okay. So when you shout or when you're saying things in anger, जब आप बात कर रहे हैं क्रोध होकर और चिल्लाकर, does the other person communicate? क्या वो व्यक्ति आपके साथ संवाद बातचीत करेगा बाद में? No, right? Okay, so that breaks communication. Then और what कौन सा breaks? तोड़ता है रिश्ता बात करने के द्वारा? When you use bad words. Sorry. जब आप बुरे, No communication. Yes, when there is no communication, you sit like a silent, stone or a. जब आप किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, एक पत्थर जैसे आप। Or when you're not showing interest, अगर आप उसके प्रति कोई प्रोत्साहन नहीं दिखाते हैं, that they're telling you something with interest, but you're sitting and scrolling on your phone. हाँ, बड़ा वो उत्साह के साथ बैठा प्रोत्साहन के साथ बात करने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं, पत्थर खेल रहे हैं। Right? Or you're reading the newspaper. आप समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे, वो बात कर रहे हैं। Or you're feeling criticized. आप क्या कर रहे हैं कि आप आपकी बुराई कर रहे हो। Right? So they're telling you something. They're saying, today in Bible college, I felt very sleepy. हाँ, अब जो इस प्रकार का, यार मैं आज तो बाइबल कॉलेज में सुबह के समय सो गया था। And the other person said, you are a sleepy person only. दूसरा व्यक्ति, तू तो सोता ही रहता है। You want to talk to them again? क्या फिर आप उससे बात करेंगे क्या? No, because they've judged you.
क्योंकि उसने आपके ऊपर क्या किया है? न्याय कर दिया है, They've criticized you, वो आपकी बुराई कर रहा है। right? Or sometimes you don't have any time to talk. तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं होता किसी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए। Or sometimes you don't talk because you don't know if you say something, one volcano will burst on the other और side. अगर कई बार ऐसे तो हम शांत हो जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं बोलूंगा तो ज्वालामुखी फूट जाएगा। So sometimes we don't talk because we are afraid of what they will say. तो कई बार हम डरते हैं बोलने की, बातचीत करने के लिए कि अगर बोलेंगे तो क्या हो सकता है। Right? So these are all things that break down communication. और ये ऐसी बातें हमारे संवाद या बातचीत करने में, वो बातचीत करने से बाधा हो जाती है या रिश्ता टूट जाता है। So we should do a role play, no? Any two people will come up? क्या कोई दो लोग आ सकते हैं यहाँ पर प्ले करने के लिए, नाटक करने के लिए? है? नाटक, हाँ दोनों आ जाओ, नाटक कर सकते हैं ऐसा? Come. आओ आओ, नाटक करके दिखाओ। Come, nice, come. बाहर तो नाटक करते हैं। Come. आओ नाटक करके दिखाओ। What are your names? Shalom and अर्पण। Arpan. Okay. So Shalom and Arpan are going to do a role play. Okay. Now. सालोम और अर्पण अब नाटक करके दिखाएंगे। Okay. So Shalom, you're going to tell Arpan about. Okay. So what do you want to tell Arpan? You want to tell him something? क्या अर्पण से आप कुछ बोलना चाहते हैं? What happened the whole day? Okay. All right. So you're going to tell him what's happened the whole day. अभी क्या कर रहे हैं आप? पूरे दिन में क्या हुआ उस पर वार्तालाप हो गया। And we'll see how Arpan responds. और अर्पण उसका प्रत्युत्तर क्या देता है? तुमको पता क्या सुबह भाई? उठते हैं तो राजू भाई का चेहरा दिख जाता है। प्यारा तो है भाई, इसमें क्या है? प्यारा है, नींद खराब हो जाता है और डिवोशन के लिए उठना पड़ता है। अरे यार I leave it to him. What he wants to do. जो भी है ये- नहीं सुन रहा है, समझा? फिर आओ सुबह यहाँ करो, सब कोई ध्यान से सुनता नहीं है, डिवोशन में सब सोते रहता है। ऊपर जाओ झाड़ू पोछे, क्या कर रहा हूँ, मेरा बात सुनना। हाँ, मेरा बात नहीं सुना जा रहा। फिर झाड़ू पोछा करो, साफ सफाई करो, ऊपर जाके नहा धोआओ, कपड़ा पहनो, ड्रायर मारो। हाँ पता है तुमको। फिर आओ नाश्ता करो जल्दी जल्दी, एक्टिंग करना। फिर क्लास में बैठो तो मेरा बगल में सोते रहेगा, फिर नहीं सुन रहा मेरा बात, तुमसे बात ही नहीं करेंगे हम, कोई फायदा। So Shalom, what did you feel when he was not paying attention? उन्होंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। I understand. और कुछ नहीं बोलेंगे, इससे ऐसा लगा। You didn't want to हाँ, say yeah, anything? yeah. Okay. All right. Now, Arpan, you tried something different. I can. Now you can listen. Yes. Okay. All right. Start. वही On है। ठीक है। Or let हाँ। Arpan talk. Shalom, you listen. Okay. भैया आपको पता है आजकल मतलब आज का मतलब जो सेशन है ना, एक नंबर चल रहा है। मतलब कैसे समझा है, ध्यान बहुत रहता है और आपके शक्ल देख के बहुत हंसी आता है। जरा कैमरा में आपको कैसे लग रहा है सेशन? बहुत मजा आ रहा है यार, तेरी बगल तो बैठे नहीं दिख रहा। अरे यार कुछ भी। ठीक है। क्या पसंद नहीं आ रहा? कुछ है? सब मजा आ रहा। मेरे को नहीं आ रहा बस। ओके। Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much, Arpan and Shalom. Thanks. धन्यवाद सालोम और अर्पण के लिए। Okay. So, last few minutes, let's look at the spiritual side of communication. और हम देखने पाएंगे आत्मिक
spiritual side of और communication. आत्मिकता की तरफ हम उस संवाद को देखने पाएंगे, वार्तालाप। The power of your words. That's what it says. It must be this one. This one. ओके। Okay. और All हम right. देखेंगे शब्दों की सामर्थ्य। So, what do you think your words, what power does your words have? क्या आप सोचते हैं आप जो शब्द बोलते हैं उसमें कितनी ताकत है, सामर्थ्य है? So, if I were to tell you, you all are such a lovely class. I love coming here to teach you. और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता, प्यार, मैं प्रेम करती हूँ, मेरे को मेरे विषय को जो पढ़ाती हूँ मैं, वो पढ़ाने में मुझे उस मजा आता है, और आप लोग को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। You are all so beautiful. आप सब बहुत ही सुंदर है। What would you feel? आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा, हाँ? Sorry? Happy. You want to listen to me, no? तो आप क्या करेंगे? सुनना पसंद करेंगे। Right. But I come and say, और अगर मैं आकर कहती हूँ इस प्रकार, you're such a bad class. ये सबसे बुरे बच्चे लोग की क्लास है, All of you are sleeping. सभी लोग सोते रहते हैं। बिल्कुल, I don't want to come tomorrow. I don't want to come tomorrow. और मैं कल जब आऊंगी तो Will you all come back tomorrow? You क्या all मैं all go back कल home. मैं आऊंगी क्या? अगर आपसे बोलेंगे आप सोते रहते हो हमेशा, मेरा प्रत्युत्तर क्या रहेगा? Right? So my words, our words have life, or मेरे- it can be of death. मेरे शब्द में मृत्यु है, आशीष भी है और श्राप भी है। Or it can be blessing, वो आशीष भी है, or it can be cursing. वो श्राप भी है। No? Yes? So I can say things to bless, or I can say things to curse. तो मैं आशीष के शब्दों को भी कह सकती हूँ और श्राप के शब्दों को भी मैं कह सकती हूँ। So what does Proverbs chapter 18 verse 20 and 21 नीति say? वचन 18 उसका 20 और 21 में क्या बताया गया है? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लगाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Right? So the tongue has the ability to speak life or speak death. और जीभ में शब्दों के द्वारा वो ताकत है जो जीवन को भी देता है और मृत्यु को भी देता है। So I don't know, maybe in your, someone when you all were children would have said some words to you. आपको आपको हो सकता है वो बात याद है कि कोई बचपन में आपको किसी ने कुछ कहा होगा, वो बात याद होगी। Like for example, when I was young, जब मैं जवान थी, when I wouldn't do something, जब मैं कुछ जो करना था वो नहीं करी, one of my family members used to call me a donkey. और मेरे परिवार के एक सदस्य ने आके मुझे गधी कहा। Yeah, correct. करेक्ट, गधी। Yeah, used to call me that. And do you think I would feel nice to be called a donkey? तो जब मुझे गधी करके कहा तो क्या मुझे अच्छा लगा होगा? Like that, even you all would have got some names, no? तो आपको भी ऐसा कोई नाम मिला होगा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली करके मिला होगा, तो आपको अच्छा लगा होगा। Right? So sometimes we use our words very carelessly. कई बार हम शब्दों का बिना सोचे समझे हम कहते हैं, Even among friends, हम अपने दोस्तों के साथ भी। even though it may seem very like a joke, हो सकता है हम मजाक कर रहे हैं उसके साथ, but those words can impact. लेकिन वो शब्द कई बार प्रभावित होता है। It can either build you up or it can destroy your spirit. हो सकता है वो आपके आत्मा को बढ़ा सकता है या आपको नाश भी कर सकता है। So let's be careful of what we say, especially in our marriages. और ध्यान दें, जब हमारे वैवाहिक जीवन में इन बातों को सावधानी बरतना होगा, हमारी बात हमें क्या बोलना है और कैसे बात करना है। Even to children. साथ साथ बच्चों के साथ भी। Usually we tend to call children all sorts of names. और ज्यादातर देखते हैं बच्चों को बिल्कुल जो मन में मुंह में आता है, बड़ा अच्छे नाम है वो बोल देते हैं। Especially when they're not studying. When they're not studying. जब वो पढ़ाई नहीं करते, Parents tend to say lots of things, no? और
माता पिता बहुत से अच्छे अच्छे शब्दों को बोलते हैं। You will become a vegetable seller. और तुम तो बिल्कुल एकदम उस कहते सड़ी सब्जियां सलाद के समान हो। You will be what, beggar? हाँ तो भिखारी हो, No, ऐसा बोलते हैं, सुना है ना? no. आपने नहीं सुना होगा लेकिन I have heard all of that. या My teachers have said all of that to me. टीचर Teachers भी, level. हाँ टीचर्स, मेरे शिक्षक ने कई बार मुझसे कहा। Right? So if you remember, I remember my father telling me a story. हाँ मुझे एक याद है जब मेरे पिता ने मुझे एक कहानी बताए थे। So he was a very smart child और वो बहुत ही स्मार्ट था बचपन में, in math, गणित में। right? And so the teacher never used to like him for his smartness. और उनके टीचर लोग उसकी बुद्धिमत्ता, उस जो बुद्धिमान वो बुद्धि था उसके पास, उसको पसंद नहीं करते थे। And so that teacher used to shame him in the class. और क्या करते हैं, उसको क्लास दूसरे बच्चों के सामने उसको शर्मिंदा करते थे। My father is 88 now. और अभी मेरे पिता 88 वर्ष के हैं। But when he was in a mind space to talk, maybe around 5-6 years back, he always used to give us this example. और 5-6 साल पहले वो मेरे पिता इस बात का उदाहरण हमें देते थे। Right? And he used to say how important words are in how we communicate. और बहुत ही महत्वपूर्ण है जब कभी हम लोगों के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। So also your words are something that can build faith. और कई बार आपके संवाद बातचीत के द्वारा विश्वास की बढ़ोतरी को होता है, करते हैं, Or it will build doubt. या तो फिर टूट जाता है, वो बनाना टूट जाता है। You all have all written exams at some point of time, और आपने अपने परीक्षाओं को लिखा है कहीं ना कहीं, right? So what do you say before an exam? और परीक्षा के पहले आप क्या कहते हैं? No, not to somebody else. To yourself, what do you say? आप अपने आप में क्या कहते हैं जब परीक्षा होती है तब? I will fail, I will fail, I will fail. ऐसा बोलते हैं कि मैं फेल, I don't know anything. मुझे नहीं मालूम, ऐसे बोलते हैं। I'll get last. मुझे इसमें नंबर नहीं मिलेगा, I'll get under. अंडा मिलेगा, Right? So ऐसा बोलते हैं ना? what are you speaking when you say that? क्या बोलते हैं जब सोचते हैं, जब आप इस प्रकार बोलते हैं? You're speaking doubt. You're not speaking faith. आप क्या कर रहे हैं? आपके विश्वास को आप कमजोर करते हैं। So when we are talking to people in our families, जब आप अपने परिवार में जब लोगों से जब वार्तालाप करते हैं, build. हमें क्या करना है? बनाना है। Suppose girls, if your husbands lose a job, अगर मान लीजिए लड़कियां इस बात को ध्यान दे, जब आपका मान लीजिए आने वाले दिन में पति का नौकरी छूट जाता है, you shouldn't say you're a good for nothing fellow. तो आप उससे क्या करेंगे? तो किसी काम के नहीं है, ऐसा बोलेंगे? What will you say? आप क्या कहेंगे? हाँ? कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, अभी बोल रहे हैं। So what do you want to say? आप क्या कहेंगे? Huh? God is our provider. Okay. परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। You will get a better job. Okay. Have faith. Okay. हाँ, Very nice. विश्वास की बात तो कहेंगे कि आपको इससे अच्छा नौकरी मिल जाएगा। Okay. Boys. आप बताएं भैया, बॉयज लोग, आप क्या बोलेंगे? अगर आपकी पत्नी की नौकरी चलेगी तो क्या बोलेंगे? वाह, Next level shalom. अगला लेवल। Nice. Okay. Right. So learn to build faith. in हमें क्या what you करना are सीखना saying. है? हमारे विश्वास को बढ़ने की बातों को सीखना है। Okay. We also know that we have to use words to build hope, to build love, to build encouragement. और हमारे शब्दों के द्वारा हमारे विश्वास को जब बढ़ाना है तो हमें क्या करना? प्रेम डेवलप, बढ़ोतरी रहेगा, हमारा उसे प्रोत्साहन मिलेगा और बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। Okay. One thing that, in our families we should do is what the Lord commanded Moses to do. और एक बात जब हम परिवार के साथ वार्तालाप करना चाहिए, वार्तालाप इस बात को करना है कि किस प्रकार मूसा ने अपने जीवन को बढ़ाया या जीवन के बारे में। So the Lord told Moses to tell Aaron to speak a blessing over the Israelites. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि To speak a blessing हाँ, over the Israelites. इस्राएलियों के लिए आशीष की बातों को कहना। Can someone read Numbers chapter 6, 22 to 27? गिनती की पुस्तक
उसका 6 अध्याय फिर 22, यहोवा ने मूसा से 22। कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। So we can also use this principle हम भी इस सिद्धांत को हम इस्तेमाल करें to speak a blessing over our spouse, over our children, over our family. हम आशीष की बातें अपने जीवन साथी, अपने बच्चे और अपने वैवाहिक जीवन में और घर में कहें। We are also to use our mouth to speak against the enemy. और हम अपने क्या मुंह के द्वारा शैतान के विरोध में हम बातों को कहें। So what do we use to speak against the enemy? शैतान के विरुद्ध में हम किस प्रकार का बात बोल सकते हैं? The word of God. परमेश्वर का वचन। It says the sword of the spirit, which is the word of God. परमेश्वर जो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर हम बोल सकते हैं। So no matter what is happening in your family, आपके परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, you speak the word of God, आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें वहां। because it's a weapon for the enemy to bring down the enemy. और शैतान को कमजोर करने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। So speak in line with God's word. हम परमेश्वर के वचन को बोले, वचन को वहां पर बोलते रहे And use your words to correctly for your family. और आप अपने परिवार के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल कर सके। Okay? Amen? आमीन। All right. Now questions. At least 3 questions. और 3 प्रश्न आप लोग के लिए। One from there, one from here, one from there, one from there. Okay. 4 questions. 4 को प्रश्न, एक आपकी तरफ से, एक ये टीम से, दूसरा, तीसरा, चौथा। पूछिए कोई प्रश्न, इधर से पहले शुरू करें। अच्छा, इधर थिंकिंग, They're thinking. Okay. Come on, come on, come on. जल्दी आपस में ना, इधर पूछो, सब लोग जानेंगे। नहीं है? डर लग रहा है क्या? पूछिए पूछिए। Okay, you decide as a group and you can ask. ओके, आप समूह में उसको डिस्कस करें, आपस में बात करें और फिर पूछें समूह में। You have a question? Ask. No, she has. Ask. Yeah, come on. अगर मिनिस्ट्री में फैमिली मेंबर रुकावट है तो क्या, जैसे मतलब आपने बताया था ना कि मिनिस्ट्री से पहले फैमिली होना चाहिए, बट अगर वो लोग रुकावट बन रहे हैं तो क्या उनसे अलग? If the family is the hindrance of yesterday I said a priority. So is the family a hindrance for the ministry? Like what rukavat? Can you explain further? Unbelievers. Unbelievers in the family will become a hindrance for the ministry? Can you tell me how? Like अगर हम लोग मिनिस्ट्री में स्टेप लेते हैं तो फैमिली जो हिंदू अनबिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग रहने नहीं देते, निकाल देते हैं ना, कैसे? Oh, that way you're saying. Okay. So I think what you're saying is, if you want to do ministry, but your family is not permitting you to do ministry. Okay. So the ministry, who is the ministry for? Yes. So it is actually, God is calling you to do something. है ना? परमेश्वर ने आपको बुलाया सेवा के लिए। सेवा किसकी है? परमेश्वर की है। So
Our priority is God always. हमेशा प्राथमिकता परमेश्वर के लिए होना है, And then only comes ministry. और उसके बाद फिर आपकी सेवकाई में। So it is your desire to do something for God that takes precedence, that takes importance, priority. और आपके अंदर वो सोच होना है कि प्राथमिकता सेवकाई में किसको दे रहे हैं। So what I meant by yesterday was, when you spend a lot of your energy and your time on ministry without giving your due time and energy to your family, that is a lack of priority. That's what I meant. मैंने जिस प्रकार आपको बताया था कल के दिन कि आप सेवकाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप परिवार को समय नहीं दे रहे हैं। प्राथमिकता उनको भी देना है, तो प्राथमिकता किसको आप दे रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। Is that more clear? Okay. All right. Okay. और कोई? My young ladies on the right. जवान महिला, हाँ कौन है? Okay, young men. Say. जवान भाई, हाँ। Say that again, sir. Give him the mic. Pass him the mic. Come in. The engagement is done. And then if they're still fighting. Okay. विशाल भैया मैम बोल रहे हैं, उनकी आगे मैम इनकी एंगेजमेंट हो गई है, तो ये बात करते हैं तो लड़की बार बार गुस्सा करती है, तो वो लड़की क्रिश्चियन है, बट तो ये बोल रहे हैं शादी करे या ना करे, फिर क्या रिस्पॉन्स दें हम। So what are you saying to make her angry? क्यों आप कौन से ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है? वो बोल रहे हैं हर बात में गुस्सा करती है। कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा बोलने के लिए। बाइबल कॉलेज भी लेके जाओ। So you first understand why is she getting angry. आपको समझना होगा कि वो क्यों गुस्सा कर रही है। Are you the problem? Okay, Vishal Bhai has enough of the question. Okay, all right. Yes, Viju. Can you give him the mic? Hello, yes. We were discussing about the communication between the partners, I mean the husband and wife. There could be times where the husband and wife might be living with their ध्यान से सुनिए, एक मिनट। हेलो, in-laws. बात ना So करिए। how to maintain the communication between mother-in-law and daughter-in-law? Can you Okay. please give some ideas? You can say it in Hindi. Okay, so first and foremost, when you are married, we said, right? Between a husband and wife, there is an inner circle. जैसे वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के जीवन में एक आंतरिक अंदरूनी एक क्या बोलना चाहिए, सर्कल है। So the communication between the husband and wife should be strong. और पति और पत्नी के बीच में वार्तालाप, संवाद बहुत ही मजबूत है। Okay, that's number one. पहली बात। Next is, if the communication between the daughter-in-law and the mother-in-law is separate from the communication between a husband and a wife. और देखते हैं कि बहू और सास के बीच में जो वार्तालाप है वो पति पत्नी से अलग है। So what generally happens is, the husband is standing in between the mother-in-law and the wife. और क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सास के बीच में
और पत्नी के बीच में मध्यस्थ के रूप में पति खड़ा हो जाता है। And what is the husband doing? पति क्या कर रहा है? Mediating. Mediating. मध्यस्थ कर रहा है। It could be mediation, but it could also be that the husband supports either one party. और क्या होता है, पति क्या करता है, या तो पत्नी को सपोर्ट करता है या उसकी माँ या सास को, Right? And so it becomes even more difficult. और उसमें क्या होता है, बहुत ही कठिनाई हो जाती है जब एक दूसरे सपोर्ट करते हैं। So the best thing is to allow the mother-in-law and the daughter-in-law to have their own conversation. तो क्या करना है, हम उन्हें मौका दे कि आपस में दोनों उस बात को करें, वार्तालाप करें और सुलझाएं। Because the relationship between a mother-in-law and a daughter-in-law is another relationship. एक बहू का और एक सास का जो रिश्ता, वो दोनों का एक अलग है। So the husband can empathize with the wife when she comes and tells about the mother-in-law. और क्या होता है, कई बार पत्नी सास की बात को बोलती है, बताती है, तो कई बार क्या होता है, उसके पति का झुकाव उस तरफ हो जाता So है। he can empathize. He should empathize. और वो पत्नी की बात को सुनना है, उसकी ओर झुकना जरूरी है बातों को सुनकर। But not say something like, don't, my mother is old, you forget it, she doesn't mean it. When you do that, she feels undervalued. The wife may feel undervalued. अगर आप ऐसा कहते हैं, अरे वो तो बुजुर्ग है, उसकी उम्र हो गई है, तो जो कुछ बोलती है सुनना है, तो कई बार वो अपने आप में उस भावनाओं को कमजोर समझती है। So some principles allow the mother-in-law and the daughter-in-law to have their own तो conversations. कुछ सिद्धांत ऐसे है कि आप उन्हें आपस में दोनों लोग को वार्तालाप करने, संवाद करने में छोड़ दें। And husband, use your wisdom when you are in between mediators. जब आप दोनों के बीच में मध्यस्थ होते हैं, तो पति को समझना बहुत जरूरी है। Okay? ठीक है? All right. Okay. So we didn't take question from this group and that group. So tomorrow when I come, 3 questions each group. और कल जब मिलेंगे, तीनों ग्रुप से क्वेश्चन चाहिए कल। Okay, let's pray. थैंक यू, प्रार्थना करें। Okay, this is the example of not listening. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Thank you, God, that you touch our hearts with your word. धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे हृदयों को छूते हैं। You want us to be obedient to what you have said. प्रभु, आप चाहते हैं हमारे जीवन से जो आपने कहे हैं, ताकि हम आज्ञाकारी बन सके। Let your word take root in our hearts और आपका वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ते जाए and bear fruit in the way that we live. और प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा उन फलों को भी देख सके। Lord, we especially pray for the attitudes we were talking about. प्रभु जी विशेष तौर से हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमने अपने आचरण के बारे में समझा। Lord, that you will help us to change and to be like you. प्रभु, आप हमारी सहायता कर ताकि हम आपके समान बन सके। Lord, may our lives really reflect your glory. और आपकी महिमा के लिए हमारा जीवन प्रभावित हो सके। I bless each student here and their families. और प्रभु, सारे विद्यार्थी को और उनके परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। I pray, God, that your face will shine over each person. प्रभु, आपकी चेहरे की चमक सबके जीवन से होने पाए। And Lord, that they will imitate you as their God, Lord. प्रभु जी, आपके पीछे चल सके, आपकी बातों को, आपके पद चिन्हों पर चल सके। प्रभु, Thank you. In Jesus' name we pray. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, Amen. Thank you. God bless. We'll see you tomorrow. Let's give a big hand to Pastor Danny Paul. Thank you so much, Pastor. Thank you, online students. See you tomorrow.